A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12th accountancy. As you know very well, in the last few videos, we discussed the various important board questions which are related to the different chapter of your class 12th accountancy syllabus. In the last video, we discussed the board questions related to the chapter number 1, that is a not-for-profit organization, as well as we discussed the questions which having a 1 marks and 3 marks related to the chapter number 1 not for profit organization. So you know very well, when we are talking about the chapter number 1 of class 12th accountancy, so you can see that under the chapter number 1 they are basically 12 marks question have been asked by the examiner in the board examination, in which the 1 marks question will become in the examination with 2 questions. It means कि 1 marks के जो questions होते हैं वो 2 आते हैं examination में, और जो 4 marks का question होता है वो इस chapter से 1 questions आते हैं, और 6 marks का जो question है वो इस chapter से कितने आते हैं 1. सो टोटल हो गए आपके 12 marks. ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्लियरली बता दिया था. सो इन दिस वीडियो let's we discuss the some of the important questions which are related to the 3 marks. Okay, so 3 marks के question में जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड. ये टॉपिक जो है वो 3 to 4 marks के क्वेश्चंस में बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है. So let's we discuss the board questions, and the question, as you know very well, the question is calculate the amount of sports material to be debited to the income and expenditure account. It means आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है इस बोर्ड एग्जामिनेशन में, ये क्वेश्चन आया है 2015 में, and the question is calculate the amount of sports material. Calculate the amount of sports material consumed. ठीक है, आपको स्पोर्ट्स मटेरियल की जो अमाउंट है वो कंजप्शन अमाउंट आपको फाइंड आउट करनी है. ठीक है, एंड द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन, दैट इज also shows above item in बैलेंस शीट. और इस कंज्यूम निकालने के साथ साथ आपको जो भी आइटम इस क्वेश्चन में दिए हैं उसको आपको बैलेंस शीट में भी शो करना है. एंड द इंफॉर्मेशन इज 2013 and 2014, and the information are, it is very clearly stock of sports material. Stock of sports material opening का given है 7,500, whereas the closing का given है 6,400. and creditors for sports material, creditors फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, ये वैल्यू गिवन है आपकी ओपनिंग की 2000 एंड क्लोजिंग की 2600. एंड ऑल्सो द एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन इन दिस क्वेश्चन, दैट इज एन अमाउंट पेड टू क्रेडिटर, अमाउंट पेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल. Sports material during the year was rupees 19,000. So this is a short and simple information given in this question to find out the sports material consumed, which shown in the debit side of the income and expenditure account, as well as in this question you have to show the given item in the balance sheet of the NPO. So you know very well, when we talking about the calculation of
स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम, सो यू नो वेरी वेल हम कौन सा फॉर्मेट फॉलो करते हैं. फॉर्मेट इज वेरी क्लियर. सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले वी हैव टू फाइंड आउट द ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, उसको राइट डाउन करते हैं. फिर उसमें ऐड करते हैं द टोटल परचेज, जितना हमने परचेज किया स्पोर्ट्स मटेरियल, और उसमें से हम माइनस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल. इट मीन्स ओपनिंग में परचेज ऐड एंड क्लोजिंग माइनस. सो वी हैव टू फाइंड आउट दी material consumed. But in this question you can see that purchase is not given. क्वेश्चन में दिया है ओपनिंग स्टॉक इतना है, क्लोजिंग स्टॉक इतना है, ओपनिंग क्रेडिटर इतना है, क्लोजिंग क्रेडिटर इतना है, परचेज नहीं गिवन. निकला है अमाउंट पेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, हमने इतना अमाउंट पे किया. तो उसके लिए वी हैव टू प्रिपेयर, वी हैव टू कैलकुलेट द क्रेडिटर्स, we have to prepare the creditors for sports material account with the help of the given information. ठीक, तो उसके लिए हम लोग क्या बना सकते हैं, बना सकते हैं क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट. कैसे बनेगा, यू नो वेरी वेल क्रेडिटर इज अ लायबिलिटी, सो उसका ओपनिंग किधर होगा, क्रेडिट साइड में. ओपनिंग क्रेडिटर इज 2000, closing creditor will be a 2600. अब क्वेश्चन में क्या दिया है, अमाउंट पेड, पे करोगे किसको, क्रेडिटर्स को. तो क्रेडिटर्स विल बी इंक्रीज और डिक्रीज, विल बी डिक्रीज. सो अगर आपने क्रेडिटर्स को पे किया कितना 19,000, इट मींस इधर आ रहा है आपका 21,600, इधर भी कितना 21,600. So the difference is 19,600. जो बैलेंस आया यही तो परचेज है. इसका मतलब इतना ही तो हमने क्रेडिटर्स से परचेज किया है ड्यूरिंग द ईयर. सो जब हमने क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट बनाया, सो वी फाइंड आउट द बैलेंस इन द क्रेडिट साइड एंड दिस बैलेंस विल बी नोन एज इन द स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज, दैट इज 19,600. सो इट इज वेरी क्लियर. जब क्वेश्चन में आपसे किसी भी स्पोर्ट्स मटेरियल का कंजप्शन पूछे और उसको बैलेंस शीट में शो करना है, तो बैलेंस शीट में शो करना इट इज नॉट अ वेरी बिग टास्क. क्वेश्चन आपको क्या फाइंड आउट करना, सबसे बड़ा काम है ये स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम, और कंजप्शन का एक ही फॉर्मूला है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग. बट इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक इज गिवन, क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन, बट परचेज इज नॉट गिवन. बट परचेज निकालने के लिए वी हैव अ सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अबाउट दी क्रेडिटर्स फॉर द स्पोर्ट्स मटेरियल. सो क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट बनाएंगे तो ओपनिंग इज 2000, क्लोजिंग इज 2600, और हम क्या दिया है क्वेश्चन में, अमाउंट पेड, कितना हमने पे किया क्रेडिटर्स को, कितना पे किया 19,000. तो जितना बैलेंस आया यही इसका क्या है, परचेज. अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट कर दो, सिंपल सा आंसर आ जाएगा. ओपनिंग कितना है क्वेश्चन में 7,500, परचेज कितना किया हमने ड्यूरिंग द ईयर 19,600, क्लोजिंग कितना है हमारा, क्लोजिंग है हमारा 6,400. So this will be known as an amount debited to income and expenditure account as sports material consumed. ये आपका सॉल्व करके आंसर आ रहा है 20,700. तो ये तो हो गई एक बात, आपने क्रेडिटर्स अकाउंट बनाया, आपने क्रेडिटर अकाउंट के हेल्प से परचेज निकाल लिया, फिर ओपनिंग वैल्यू गिवन थी, क्लोजिंग वैल्यू गिवन थी, टोटल परचेज पे वैल्यू रख दिया और आपने फाइंड आउट कर दिया स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड. अब दूसरी बात करते हैं, इसमें जो इंफॉर्मेशन गिवन है इसको हम बैलेंस शीट में क्या करते हैं, शो करते हैं. बैलेंस शीट में कैसे इफेक्ट करेंगे, शो करेंगे. When we prepare the balance sheet of this question, so you know very well, यहां पे दो बैलेंस शीट की हमेशा बात होती है. एक ओपनिंग बैलेंस शीट जो कि 2013 को प्रिपेयर हुई होगी, जो 2013 की बैलेंस शीट होगी, सो वहां पर अगर हम देखें तो ये जो ओपनिंग स्टॉक है ये
लास्ट ईयर का है, 2013 का है, तो इसको हम लोग कहाँ दिखाएंगे? स्पोर्ट्स मटेरियल इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, दैट इज एन 7,500। सिमिलरली जब हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे 2000 कब की? 14 की, तो उसको भी उस स्पोर्ट्स मटेरियल की वैल्यू को कहाँ दिखाएंगे? एसेट साइड, स्पोर्ट्स मटेरियल, क्योंकि ये सब एसेट्स होती हैं। कितनी है? 6,400, बस हो गया। और इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में कितना शो होगा? 20,700। सिमिलरली जो क्रेडिटर्स हैं, ओपनिंग क्रेडिटर्स, वो लायबिलिटी में शो होंगे। क्रेडिटर्स, क्योंकि क्रेडिटर्स लायबिलिटी, ओपनिंग क्रेडिटर्स 2000, whereas a closing creditor is 2,600. So ये हो गया आपका कैलकुलेशन, वर्किंग नोट एंड द बैलेंस शीट of the previous year and the current year. So please note down this question in your copy properly. Now we will move to the next type of the question, and this question is related to the subscription. Find out करना है amount of subscription credited to income and expenditure account. एंड ये क्वेश्चन आपका ऑलरेडी आ चुका है। कब ये आया है? 2020 के सैंपल पेपर जिसे इशू किया है सीबीएसई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके पास ऑलरेडी है। तो आपको फाइंड आउट करना है अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड द इंफॉर्मेशन एज यू कैन सी दैट ऑन योर PDF file. Amount received during the year including 20,000 for the 2018-19, 30,000 for the 2021 and 10,000 for the 2022 is 7,80,000. Amount received in advance 1,04,2019 is including 15,000 for 2020-21, 35,000. Area at the beginning is 40,000 and area at end which is called outstanding at end 50,000. एंड उसमें सिंपल सा लिखा हुआ है आउट ऑफ सब्सक्रिप्शन इन एरिया अराउंड 1/4/2019 15,000 आर नो लॉन्गर रिकवरेबल। यानी कि 1/4/2019 में जो सब्सक्रिप्शन बिगनिंग में आउटस्टैंडिंग है 40,000 रुपए, उसमें 15,000 रुपए अब आपको नहीं मिलने वाला है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा उस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको पता है कि आपको टोटल सब्सक्रिप्शन कितना मिला हुआ है। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर आपको मिला है इस 7,85,000। कितना मिला है आपको? 7,80,000। ठीक, एंड आफ्टर दैट यू नो वेरी वेल कि आपका जो बिगनिंग है एरियर बिगनिंग का और आउटस्टैंडिंग एट एंड, इन सबको क्या करते हैं? आउटस्टैंडिंग एट एंड को ऐड करते हैं और आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। सो बिगनिंग आउटस्टैंडिंग एट एंड कितना है? 50,000 और बिगनिंग का आउटस्टैंडिंग है आपका 40,000। ये हो गया। अपार्ट फ्रॉम दिस, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एडवांस एट बिगनिंग, आपको बिगनिंग में कितना एडवांस मिल चुका है? 35,000। एडवांस एट बिगनिंग 35,000, जिसे हम लोग क्या करते हैं? ऐड करते हैं। और एडवांस एट एंड, एंड में कितना एडवांस है? दैट इज एन 55,000, उसको क्या करते हैं? माइनस। ये पूरा फॉर्मेट हो गया आपका। एज वेल एज 15,000 जो है वो नॉट रिकवरेबल है, यानी अभी भी आपको नहीं मिलेगा। सो वो अभी भी आपके आउटस्टैंडिंग का पार्ट बना रहेगा। सो 7,80,000 में क्वेश्चन में क्लियरली ये लिखा हुआ था कि 15,000 जो है वो आर नो लॉन्गर रिकवरेबल। इट मींस जो 15,000 है वो अभी भी क्या रहेगा? आउटस्टैंडिंग एट एंड। इट मींस 50,000 तो आउटस्टैंडिंग है ही और 15,000 अभी भी आपको नहीं मिलने वाला है। तो आउटस्टैंडिंग एंड को हम लोग क्या करते हैं? ऐड करते हैं। अब इसको सॉल्व करोगे, सो जो भी वैल्यू आएगी इट विल बी नोन एज अमाउंट
क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और ये क्वेश्चन मैंने रिवाइज भी करा है एंड द आंसर इज ऑफ दिस क्वेश्चन इज 7,85,000। सो फॉर्मेट आपको पकड़ के लेके चलना है। फॉर्मेट को लेकर किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन या किसी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि 7,80,000 जो हमने लिखा हुआ है, ये जो 7,80,000 है इसमें भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे कि इसमें लिखा है कि इंक्लूडिंग 20,000 फॉर 18-19, 30,000 फॉर द 20-21 एंड 10,000 फॉर द 21-22। सो एडवांस जो है वो आपका सब मिलाकर लिखा गया है, ठीक है। यानी 30 एंड 10 जो है आपका 18-19 यानी प्रीवियस ईयर का, एंड 10 जो और भी पिछले साल का कॉन्सेप्ट से रिलेटेड रखा गया है। 7,80,000 मिला, जिसमें 20,000 प्रीवियस ईयर का, 10,000 2021-22 नेक्स्ट ईयर, सो टोटल इज 40,000 आउटस्टैंडिंग बिगनिंग का था, उसको माइनस कर दिया। उसी तरह से अगर हम लोग बात करें एडवांस की, तो 15,000 आपका आउटस्टैंडिंग, ये है 15,000, ये है आपका एडवांस एज ऑन 1/4/2019, यस 15,000 फॉर 2022। सो ये है पूरे क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस। If we are talking about the CBSE examination paper 2020, CBSE examination 2020, the questions related to the chapter number 1, that is an accounting for not for profit organization. So उसमें दो important question बहुत ही पॉपुलर आए थे। एक क्वेश्चन था, from the following particulars relating to the Shyam Ji Charitable Society, prepare a receipts and payment account for the year ending 31st March 2019. So उसमें जो क्वेश्चन आया था, पहला आया था कि you had to prepare the receipts and payment account, आपको receipts and payment account बनाना था। ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे 2020 में, and the simple information is given for the 3 marks. First, cash in hand, opening balance is given, as well as the closing balance is also given. So you can see that cash in hand is our opening balance. So to balance BD, याद होगा इसमें हम लोग पहले कैश की वैल्यू लिखते हैं और फिर बैंक की वैल्यू लिखते हैं। सो ओपनिंग कैश की वैल्यू जो गिवन है वो दी है 16,000 और ओपनिंग बैंक की वैल्यू दी हुई है 18,000। अपार्ट फ्रॉम दिस सब्सक्रिप्शन ₹60,000 is given, जिसमें 11,000 is for ₹1718। So you know very well हम कैसे लिखते हैं। अगर आपने क्वेश्चन भी देखा होगा जिसमें रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होता है, तो सब्सक्रिप्शन की डिटेल इंफॉर्मेशन गिवन होती है 2017-18 और 2018-19 ऐसे करके दिया होता है। और ये जो सब्सक्रिप्शन हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं वो बना रहे हैं 31 मार्च 2019 को। सो क्लियरली है प्रीवियस ईयर का वैल्यू है इसमें 11,000 और टोटल हमें मिला है 60,000। सो बाकी कितना बचा? बाकी बचा 49,000 जो हमें करंट ईयर से मिला। अगर आप अपने सब्सक्रिप्शन को एकदम क्लियरली बनाओगे, अरे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को क्लियरली बनाओगे, तो आपका इंप्रेशन जो है एग्जामिनर पे ज्यादा पड़ेगा। नेक्स्ट लिखा है डोनेशन फॉर बिल्डिंग, ये भी रिसिप्ट होती है। सो टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग, बिल्डिंग के लिए डोनेशन कितना मिला? दैट इज एन 2,90,000। एज वेल एज मिसलेनियस एक्सपेंसेस 98,000 बाय miscellaneous expense 98,000 and next is lockers rent 32,000 and entrance fees 41,000। lockers rent मिला 32 and entrance fees 31। lockers rent क्या होती है? NPO के लिए इनकम होती है। और the second one is entrance fees। और ये क्वेश्चन आ चुका है 2020 में। अभी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग को डिस्कस करने हैं क्योंकि इस चैप्टर में से आपको देखा ही है 10 to 12 मार्क्स एकदम एग्जैक्टली एकदम प्योर आते हैं, क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं है। सो लॉकर रेंट इज 32,000 एंड एंट्रेंस फीस इज 41,000। सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट। अब हमें करना क्या है सर? अब हमें
बैलेंस करना होगा। तो जब हमने डेबिट साइड ऐड किया सो इट विल बी फाइन 4,67,000। सो क्रेडिट में भी कितना आना चाहिए 4,67,000। सो जो बैलेंस है उसे हम लोग किससे शो करेंगे बाय बैलेंसिंग। बट यहाँ क्वेश्चन में ये क्लियरली नहीं है कि जो बैलेंस बच रहा है वो प्योरली कैश का है कि प्योरली बैंक का है। तो हम पूरा ऐसे ही बैलेंस करके छोड़ देंगे एंड द आंसर इज 3,69,000। सो ये है सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ अगेन सीबीएसई में यू नो वेरी वेल इंटरनल चॉइस पे क्वेश्चन बेस्ड होता है, यानी कि जो एनपीओ के क्वेश्चंस आते हैं 3 to 4 मार्क्स के वो जनरली इंटरनल चॉइस होते हैं, यानी कि ये मेन क्वेश्चन था उस पर इंटरनल चॉइस भी गिवन था। एंड द क्वेश्चन इज फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन ऑफ अ हॉस्पिटल कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मेडिसिन consumed and year is 2018 and 19। आपको 2018 and 19 के लिए क्या पूछा है, मेडिसिन कंज्यूम फाइंड आउट करना है। एंड द वैल्यू इज पेमेंट फॉर परचेज ऑफ मेडिसिन इज 5,10,000, ओपनिंग क्रेडिटर 34, क्लोजिंग क्रेडिटर इज 29, ओपनिंग स्टॉक इज 86 एंड क्लोजिंग स्टॉक इज 39, ओपनिंग एडवांस इज 26 एंड क्लोजिंग एडवांस इज 32। सो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको क्लियरली बताया है कि जब पेमेंट इज गिवन, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने बताया था सबसे पहले आप एक फॉर्मेट ड्रॉप कर लो जिसमें सबसे पहले क्या लिखते हैं, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ क्रेडिटर, ये वैल्यू रहती है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, ओ इट इज एन ऐड करते हैं क्लोजिंग क्रेडिटर या क्रेडिटर्स एट एंड, फिर ऐड करते हैं ओपनिंग एडवांस, या फिर हम इसको थोड़ा सा और स्टैंडर्ड वर्ड में आपको समझा सकते हैं ताकि आपको लर्न रहेगा। पहला क्रेडिटर्स ऑन 31st March 2019, second is advance on 31st March 2018, सिमिलरली माइनस करेंगे क्रेडिटर बिगनिंग का, क्रेडिटर्स ऑन 31st March 2018 एंड अगेन माइनस करेंगे एडवांस ऑन 31st March 2019। तो ये क्लियरली हो गया कि जो ओपनिंग क्रेडिटर है वो माइनस होता है, क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस होता है। अपोजिट टर्म में बात करें तो ओपनिंग एडवांस प्लस होता है और क्लोजिंग एडवांस क्या होता है, माइनस होता है, जस्ट अपोजिट। सो इतना ऐड और लेस करने पर आता है हमारा परचेज, जितना हमने परचेज किया, परचेज ऑफ मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर, मींस हमने ड्यूरिंग द ईयर कितने का मेडिसिन परचेज किया। फिर परचेज क्लियर हो गया तो हम इसमें ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन और माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन। तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं क्या, कॉस्ट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम विच शोन इन द डेबिट साइड, इट मींस अमाउंट debited to income and expenditure account as medicine consumed। So this is on format, और इस फॉर्मेट को अगर याद कर लिया आपने, वैसे मैंने इस फॉर्मेट को क्लास में ही बताया हुआ है कि पहले जितना पेमेंट दिया है क्रेडिटर्स का, कितना पेमेंट आपने क्रेडिटर्स का है 5,10,000, उसमें ओपनिंग क्रेडिटर्स को माइनस करो। ओपनिंग क्रेडिटर्स कितने गिवन है क्वेश्चन में, ओपनिंग क्रेडिटर इज 34,000 और क्लोजिंग क्रेडिटर्स को ऐड कर दो एंड क्लोजिंग क्रेडिटर इज 29,000। उसी के साथ साथ ओपनिंग एडवांस दिया है 86,000, उसे क्या करो, ओपनिंग को क्या करना है प्लस, यस
ओपनिंग दिया है आपका 86 एंड क्लोजिंग दिया है आपका 39। सो ये ऐड लेस करके आएगा आपका परचेज ऑफ मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर, और ओपनिंग आपका गिवन है 86 एंड 39 इज अ वैल्यूज का डिफरेंस हो गया। 86 and 29 is the opening and closing. So 86 is there, 39 is there. Advance is given. Opening advance is 26 and closing advance is 26 and closing advance is 32. अब वैल्यूज आपने सही से पुट कर दी, यानी 5,10,000 में 29, 26 at 34 and 32 is minus, so purchase is 4,99,000, और उसमें आप 86 प्लस करो, 39 माइनस करो तो आ जाएगा 5,46,000, and this amount will be shown in the debit side of the income and expenditure account. चलिए एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं जो कि सीबीएसई के सैंपल पेपर में पूछा गया था, which are issued on the 9 October 2020, and this question is also having a 3 to 4 marks in the examination, and this question will be very easy कि find out the amount charged as a sports material consumed. Similarly इस क्वेश्चन में भी आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना था, and the common sense of this question is कि इस क्वेश्चन में कैश परचेज गिवन है बट क्रेडिट परचेज इज नॉट गिवन, क्योंकि आपको पता है कि जब भी हम मटेरियल कंज्यूम निकालते हैं तो हम उसमें टोटल परचेज ऐड करते हैं। सो इस क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है कि फाइंड आउट द अमाउंट टू बी चार्ज टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम। सो हमें फाइंड आउट करना है sports material consumed, and for what year? For the year 2019-20, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है सैंपल पेपर में, सैंपल पेपर 2020 का सीबीएसई ने जो इशू किया था ऑन 9 अक्टूबर को। अब ये क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में लिखा है ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 60,000, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स 3 लाख, creditors for sports material 1 lakh, closing creditors 80,000, sports material sold 15,000, cash purchase of the sports material is 1,30,000, there was zero stock at the end of the financial year. सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बनाएंगे creditors for sports material अकाउंट बनाएंगे। ओपनिंग स्पोर्ट्स मटेरियल कितना था आपका, ओपनिंग स्पोर्ट्स मटेरियल था आपका 60,000, अरे क्रेडिटर्स कितने थे, ओपनिंग क्रेडिटर्स थे आपके 1 लाख एंड क्लोजिंग थे आपके 80,000। ओके, और क्वेश्चन में और क्या गिवन था, क्वेश्चन में था कि हमने कितना अमाउंट पेड किया है क्रेडिटर्स को, दैट इज 3 लाख, तो टू बैंक, और ये भी लिखा था कि हमने कितने का मटेरियल सोल्ड आउट कर दिया है, तो इसका लेना क्रेडिटर से तो कुछ लेना देना नहीं है, इसका लेना देना कहां पे होगा आपका, व्हेन वी कैलकुलेट द स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम ओपनिंग प्लस परचेज प्लस माइनस क्लोजिंग, तो उसमें से सोल्ड को हम माइनस कर देंगे और उसकी बुक वैल्यू को माइनस करेंगे, उसकी सेल वैल्यू को माइनस नहीं करेंगे। तो यहाँ आपका जो बैलेंस आता है, याद होगा आपको, जस्ट हम लोगों ने क्वेश्चन को फ्रेम आउट किया था, तो जो बैलेंस आता है उसको हम लोग क्या देखते हैं, बाय स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज, कितना आया 2,80,000। सो क्लियरली है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिट परचेज। जो हम क्रेडिटर से खरीदते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिट परचेज। और क्वेश्चन में ऑलरेडी कैश परचेज इज गिवन 1,30,000। सो स्पोर्ट्स मटेरियल का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग मटेरियल प्लस परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल वेयर द कैश परचेज और क्रेडिट परचेज, चाहे वो कैश परचेज हो चाहे क्रेडिट हो, उसमें से माइनस करते हैं क्लोजिंग स्पोर्ट्स मटेरियल, और यहाँ पे सेल भी है तो सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल का को भी हम लोग क्या करेंगे, माइनस करते हैं।
तो जो वैल्यू आएगी इट विल बी शोन एज विल बी डेबिटेड टू द अमाउंट डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। ओपनिंग स्पोर्ट्स मटेरियल दिया है 60,000, परचेज में कैश परचेज आया है आपका 1,30,000 और क्रेडिट परचेज आपने अभी निकाला है 280 और क्लोजिंग स्टेटमेंट 0 है और आपने सेल किया है कितना, सेल किया है आपने स्पोर्ट्स मटेरियल 35,000 बुक वैल्यू, 15,000 में सेल किया है, उससे कोई लेना देना नहीं है, 35,000। तो जो ऐड और लेस करके ये आंसर आएगा दैट इज एन ये क्वेश्चन नंबर 14 था आपके सैम्पल पेपर का। तो अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें सो वी कैन से दैट द आंसर इज 4,35,000 एंड दिस अमाउंट टू बी डेबिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इस तरह के सॉल्यूशन आप लोग अपनी कॉपीज में अच्छे से नोट कर लीजिए। ओके, सो इन today's video we discussed a lots of the board questions which are related to the your syllabus, and this question having a 3 marks in the board examination and you know very well इस फर्स्ट चैप्टर में बेसिकली दो तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। दो टाइप के क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं, 3 to 4 मार्क्स में। वो है पहला सब्सक्रिप्शन, एडजस्टमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन एज वेल एज द कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। जैसे कि स्पोर्ट्स मटेरियल है, हाँ, इसमें स्पोर्ट्स मटेरियल की जनरली बात होती है, या फिर किसी तरह के अदर मटेरियल्स जो होते हैं उनका कंजप्शन निकालना, और उस कंजप्शन को निकालने के लिए हम लोगों ने आज कई तरह के फॉर्मेट और कई तरह के क्वेश्चन डिस्कस किए। सो आई होप आज हम लोगों ने जो भी डिस्कस किया इट इज़ अ वेरी क्लियर फॉर यू। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एंड टेक केयर।